अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो गाइस आज हम क्या देखने वाले हैं, उस्मान बताएगा। जी आज हम देखने जा रहे हैं दिस टाइम साउथ सूडान प्रपोज टू गिव एग्रीकल्चर लैंड टू बांग्लादेश। तो वाओ, जबरदस्त न्यूज़ आ रही है जी बांग्लादेश से कि साउथ सूडान जो है परपोज टू गिव एग्रीकल्चरल लैंड टू बांग्लादेश। तो इसके ऊपर आज हम वीडियो देखेंगे। एक अच्छी न्यूज़ है बांग्लादेश के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। उस्मान भाई, बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अच्छा। और जिस तरीके से लैंड का तुमको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो मसला रहता है हाँ बांग्लादेश इसलिए। को खुराक के लिए। तो इसके लिए बांग्लादेश जो है वो साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लैंड जो है वो लीज पर लेता है और एग्रीकल्चर वहाँ पर फार्मिंग वगैरह की जाती है। तो इस न्यूज़ में वीडियो में ये हमें देखने को मिलेगा जो साउथ सूडान है वो अब लैंड देने वाला है, और इसके बांग्लादेश और साउथ सूडान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होंगे इससे डेफिनेटली। तो हाँ पहले जी। वीडियो देख लेते हैं, फिर वीडियो क्या है फिर उसके बाद इसके ऊपर हाँ जी, डिस्कशन करते चलें हैं। जी। तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। সুদানের ৬৫ কোটি টাকা ঋণের দায় বাংলাদেশ নেয়ার পর এবার বাংলাদেশকে কৃষি জমি দেওয়ার প্রস্তাব দক্ষিণ সুদানের। ব্যবস্থা নিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘের ৭৬তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বাংলাদেশকে কৃষি জমি দেওয়ার প্রস্তাব করেছে মধ্য আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সুদানের প্রতিনিধি দল। তারা চায় বাংলাদেশ সেই জমি ব্যবহার করে কৃষি পণ্য উৎপাদন করুক। বিষয়টি আরও গভীরভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র, বাণিজ্য ও কৃষি এই তিন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে ১৫ লাখের উপর মানুষের প্রাণহানির পর ২০১১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিতি পায় দক্ষিণ সুদান। ওই বছরের ৯ জুলাই জাতিসংঘ স্বীকৃত ১৯৩তম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দেশটি। ৬,১৯,৭৪৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশটিতে জনসংখ্যা ১,১০,০০,০০০ কিছু বেশি। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দক্ষিণ সুদানের প্রতিনিধিরা বলছেন তাদের দেশে অনেক জমি পতিত পড়ে আছে। বাংলাদেশ চাইলে এই জমি ব্যবহার করতে পারে কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য। বাংলাদেশ আগ্রহ প্রকাশ করলে তারা জমি দেবে। সেজন্য পররাষ্ট্র, বাণিজ্য ও কৃষি তিন মন্ত্রণালয়কে একত্রে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশটিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করলে সেখানকার স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যাবে, বাইরের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা যাবে, আবার প্রয়োজনে দেশেও আনা যাবে। কৃষিপণ্যের মধ্যে সবজি উৎপাদন করলে দক্ষিণ সুদান সেসব কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের রপ্তানির পণ্যের বড় অংশই তৈরি পোশাক। এর বাইরে এই পদক্ষেপ অর্থাৎ দক্ষিণ সুদানে কৃষিপণ্য উৎপাদন নিলে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণে বড় ভূমিকা রাখা যাবে, এমনটা প্রধানমন্ত্রী মনে করছেন। এর আগে গেল আগস্ট মাসে দেশটিতে সফর করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন। ২২ আগস্ট দেশটির রাজধানী জুবায় প্রেসিডেন্ট সালভা কির মায়ারদিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দক্ষিণ সুদানের উন্নয়নে কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেন। এর আগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের কাছে ৬,০০০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৫,১০,০০০ কোটি টাকার সমান অর্থের দেনাদার আফ্রিকার দেশ সুদান। এ ঋণ শোধে দেশটির পাশে দাঁড়াতে আইএমএফ তার সব সদস্যকে আহ্বান জানালে কম বেশি সবাই তাতে সাড়া দেয়। বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও সুদানকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়। আইএমএফের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সুদানকে ৬৫ কোটি টাকা সমান ঋণ মওকুফ সুবিধা দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে জানায়, আইএমএফের সদস্য হিসেবে সব দেশেরই হিসেব রয়েছে সংস্থাটিতে। সুবিধা দিতে রাজি হওয়ায় এখন আইএমএফের কাছে সুদানের পুরো ঋণের মধ্যে ৬৫ কোটি টাকা পরিশোধের দায়িত্ব বাংলাদেশের ভাগে থাকবে। সূত্রগুলো জানায়, বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আইএমএফ থেকে একটি চিঠি পায়। চিঠির সূত্র ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। অনুমোদিত হওয়ার পর সুদান এবং আইএমএফকে তা জানিয়ে দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। ৫৭ সদস্যের ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশ সুদান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুদান অত্যাধিক ঋণগ্রস্ত ও দরিদ্র রাষ্ট্র। সরকার আশা করে এই অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে সুদানের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করবে। সুদানের জনসংখ্যা ৪.৫ কোটি, যার ৭০% মুসলিম। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই দেশটির। গত বছর আইএমএফের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ৮ কোটি টাকার বেশি অর্থের সমান একই ধরনের সুবিধা দিয়েছিল আফ্রিকার আরেক দেশ সোমালিয়াকে। সেটিও ছিল দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে সোমালিয়াকে দেওয়া সুবিধা। ओके, तो गाइज ये हमने न्यूज़ देखा है और AOW न्यूज़ और काफी उसमें बड़ी न्यूज़ है।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बांग्लादेश की जो पॉलिसीज़ है ना, इस तरीके की यही चीज़ है कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग हो रही है। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें देखो अब इसका फ़ायदा क्या होता है। आपने लीज के ऊपर किसी भी कंट्री में जब लैंड आप ले लेते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर आप फार्मिंग करते हैं या जो भी आप काम है, एक चीज़ ये होती है कि आपने अपनी आपकी जो इंपोर्ट्स होती है ना वो कम हो जाती हैं। सही है। मीन्स एक चीज़ देखो कि अगर हमको अनाज के लिए या गंदुम है या कोई भी चीज़ है, राइस है, वाट एवर जो भी है, कोई भी चीज़ ले लो, एग्जांपल लेनी है कि वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी दूसरे कंट्री से, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और इधर से इसमें ये हो जाता है कि आप अपनी फार्मिंग उधर कर रहे हैं, आपका आपने बनाए हुए हैं, और उधर से जो आप एग्रीकल्चर आपके अपना सारा निज़ाम है आपने लीज़ के ऊपर ले लिया, और वहीं से जो आप अनाज उगाएंगे वो आपके देश में आएगा, वो सस्ता पड़ेगा आपको। सही है। पैसा पहले लीज के ऊपर आपने रेंट के ऊपर ज़मीन ली है, लैंड ली है, आपके कंट्री से पैसा जब बाहर जाता है उससे डबल होकर आपका अनाज वापस की आए। सूरत में इधर आता है, वापस सही है। आता है। तो इससे जो इकॉनमी है वो स्टेबल रहती है और फ़ायदा होता है, बजाय कि हम दूसरे देशों से डायरेक्टली इंपोर्ट करें। तो वो इंपोर्ट की बजाय हम अपना ही उधर ज़मीन लेकर, तो ये बांग्लादेश की पॉलिसी रही है। और साउथ अफ्रीका में बांग्लादेश ने पहले भी काफ़ी सारे एरियाज़ बांग्लादेश के पास पहले भी लैंड्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो बांग्लादेश जिनके ऊपर वर्किंग कर रहा है, जिनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बांग्लादेश को। और ये भी उसी का एक हिस्सा है कि बांग्लादेश ने अब साउथ सूडान जो है उनके साथ रिलेशंस को बेहतर करेगा, और वहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लेकर और वहाँ पर जो है काश्तकारी जो है वो की जाएगी। तो टोटल अगर हम देखें तो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी न्यूज़ है ये। और बड़ी न्यूज़ है। और दोनों मुल्कों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। डेफिनेटली साउथ सूडान एक पुअर कंट्री है, इतना मतलब रिच कंट्री में नहीं आता, पुअर कंट्री है। साउथ एशिया हम अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है लोग, तो उस वजह से बांग्लादेश को उनको लोगों को भी फ़ायदा होता है और बांग्लादेश को भी फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बांग्लादेश के, अगर हम फॉरेन पॉलिसीज़ जो होगी इस तरीके की जो इकॉनमी के लिए बहुत ही गाइस ज़बरदस्त हैं जो बांग्लादेश ये स्टेप्स ले रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपने की मोनी करे तो ये लाजमी बताइएगा हमें, ताकि हमें भी आपकी जो कमेंट्स हैं, आपकी जो आप सजेशंस होती हैं, जो आप कमेंट्स करते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, जिन चीज़ों का हमें नहीं पता होता उसका पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं। हाँ, मतलब हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो बांग्लादेश के लोकल पीपल्स हैं, वहाँ के जो नेटिव पीपल्स हैं, वो इन न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं और आप लोग उनका क्या राय होती है। हाँ, ये चीज़ों का हमें आइडिया हो जाता है। तो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।